پڑی ہے۔ پھر فرمایا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، کیا تم نے پہاڑ کو نہیں دیکھا جو الگ الگ رنگ کے ہیں، سفید ہیں، کالے ہیں، لال ہیں، مختلف رنگ کے الگ الگ پہاڑ۔ گویا کہ جیولوجی اور جیوگرافی کے سارے فیلڈز کو کور کیا گیا، ہمیں یہ فیلڈز کا پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں پتہ نہیں ومن الناس، اور کیا انسان کو نہیں پڑھتے ہو، وہ پورے ہیومن سائنسز، سوشل سائنسز اور میڈیکل سائنسز کو پورا کور کیا گیا۔ پھر فرمایا والدواب والانعام مختلف الوان کذالک، کیا وہ جانوروں کو اور کیٹل کو نہیں پڑھتے؟ گویا کہ پورے ویٹرنری سائنسز اور زوالوجی کو پورے فیلڈز کو کور کیا گیا۔ اس کے بعد میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جتنے فیلڈز کا ذکر آیا ہے، کاسمولوجی، میٹیورولوجی، ایسٹرونومی، ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر اور جیولوجی اور جیوگرافی اور میڈیکل سائنس اور ویٹرنری سائنس، پورے سائنسز کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک بنیادی بات فرمائی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی طور پہ وہی لوگ ڈرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں اور اس کی گریٹنس سمجھ کے اس کو ناراض کرنے سے جو ڈرتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، وہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ کون سے علم کی بات ہوئی؟ یہ وہ سائنسز ہے جس کو میں نے ذکر کیا، وہ پورے اپنا سائنسز کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دین ایک بالکل الگ ہے، اس کا تعلق کوئی نہ اللہ سے نہیں، یہ بالکل غلط بات۔ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی پڑھائی آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ میں اگر میڈیسن پڑھ رہا ہوں تو پھر وہ پڑھتے ہوئے میرے سامنے واضح ہوگا کہ یہ ایک سیل جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو دل جو کام کر رہا ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، یہ چیز میرے سامنے واضح ہوگی کہ اس کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے۔ اگر میں آسمانوں کو پڑھ رہا ہوں تو پھر آسمانوں کو پڑھتے ہوئے یہ نتیجے میں پہنچوں گا کہ اتنا بلند آسمان اللہ کے سوا آپ میں نہیں بنا سکتا ہے، دنیا کے جتنے سائنسز ہیں اس کا آخر میں نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کو آپ اچھے انداز میں پہچانے، کوئی بھی فیلڈ ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ اللہ کو پہچاننا شروع کریں گے، آپ نے علم کا مقصد حاصل کر لیا۔ اس کے بعد میں آپ کو جاب ملتی ہے نہیں ملتی ہے، اس کی بنیاد پہ دنیا کے اندر آپ کو کوئی پوسٹ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، وہ ریلیونٹ ہے۔ اگر آپ کو پڑھنے کے بعد میں آپ اللہ کو اگر پہچاننا شروع کریں تو آپ نے علم کا بڑا مقصد حاصل کر لیا۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے بالکل واضح ہونا چاہیے، ہمارے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پہچان لیں، اللہ کو راضی کریں۔ اس کے بعد میں جاب ملنا ہے، وہ سارے چیزیں اس کے کانسیکوینسز میں سائیڈ ایفیکٹ میں ہوں گے اور وہ مقصد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز جب ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو اس کے بعد میں جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر شوق بھی اس کے اندر میں زیادہ ہونا چاہیے۔ اور دنیا کی ایک چھوٹی چیز کے واسطے اگر اتنی محنت کر رہے ہیں تو وہ چھوٹی چیز سے کئی گنا بڑی پوری کائنات میں جرات ہے، جب اس کے واسطے آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے شوق میں اور آپ کی محنت کے اندر ضرور فرق آئے گا۔ تو دنیا کے اندر کوئی اور موٹیویشن نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ آپ یہ پڑھنے کے نتیجے میں آپ اللہ سے اور قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ مقصد کو ہمارے سامنے ہم سب کو واضح کرنا چاہیے۔ کئی اسٹوڈنٹس ہیں پوچھنے کا پچھلے کئی سالوں سے موقع ملا جو اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے رہے، اور جب کبھی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھتے کہ ٹینتھ کے بعد میں کیا پلان ہے، بولتے ہیں ایگزام کے بعد میں دیکھیں۔ اس کے بعد بولتے ہیں کہ انٹر کے بعد میں کیا پلان ہے، تو انٹر کے بعد میں دیکھیں۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ویژن سے کتنا ہے کہ ایگزام کے بعد میں پھر آگے کا دیکھیں گے۔ یہ اگر اتنا چھوٹا ویژن ہے تو پھر وہ لوگ دنیا کے اندر زیادہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے بہت بڑا ویژن ہونا چاہیے، کلیئرٹی ہونا چاہیے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایگزام کے اندر آپ کتنے مارکس لانا چاہ رہے ہیں یہ آپ کا ٹارگیٹ ضرور ہو سکتا ہے، زندگی کا مشن اور ویژن بنی ہے کہ ایک سیڑھی ہے، ایک اسٹیپ۔ اس کے بعد پھر آپ آگے کا بھی دیکھیں کہ نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر میں کیا کچھ حاصل کرنے والا ہوں، کیا کچھ حاصل کرنے والی ہوں، کیا میری منزل ہوگی، یہ کلیئرٹی ہونا چاہیے۔ یہ اور یہ درمیان میں جتنے ایگزام کرتے ہو یہ سمجھتے ہیں صرف مائل اسٹون ہے، ایک آپ سفر کر رہے تھے، آپ نے مائل اسٹون لگا دی اور اس کے بعد پھر آگے ہو گئے۔ اگر ایگزام مقصد بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسٹریسفل ہوتا ہے، اور وہ اسٹریس کیسا ہوتا ہے، آپ سب لوگ بہت ریسنٹلی اسٹریس سے گزرے، آپ لوگ بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ اسٹریس کیا چیز ہے، اور اس سے اگر اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پڑھائی سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، بلکہ پڑھائی کا ایک مقصد سیٹ کرنا ہے اور ایک اپنا ویژن کلیئر کرنا ہے۔ اور یہ ایگزام میں سمجھنا ہے کہ ایک مائل اسٹون ہے، ٹینتھ کا ایک مائل اسٹون ہو گیا،
आगे भी और एक मैच बनाने वाला है। वरना होता ये कि 10th के एग्जाम से पहले स्कूल में टीचर्स भी बोलते हैं, घर में वालिदैन भी बोलते हैं, हम भी बोले 10th कर लो, उसके बाद जिंदगी बिल्कुल सेट हो जाती है। 10th करने के लिए इंटर में जाते हैं, नहीं अभी एमसेट है और ये नीट है, तो एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद फिर सुकून है, पूरा प्रोफेशन सेट हो जाता है। वो एग्जाम क्लियर करके जैसा फील्ड में आते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। वो करने के बाद में फिर बोलते हैं कि नहीं एमबीबीएस काफ़ी नहीं है, एमडी करना है, फिर उसकी स्ट्रगल में लगता है। फिर वो करने के बाद बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे भी खत्म नहीं है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए इसमें लगना है। अगर विजन से लिखना है कि एग्जाम पास करना है और ये समझ में नहीं एग्जाम का सब आसान हो जाता, जिंदगी ऐसी नहीं। हम जब पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को जिंदगी में सीखना है, और जिंदगी जब सीखेंगे तो विजन क्लियर है आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आपके पास विजन क्लियर है कि मैं सिर्फ क्या करना है, इम्पोर्टेंट है क्या करने वाले हैं, आफ्टर 10 ईयर्स आप क्या करने वाले हैं और आपका क्या काम होगा, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, सोसाइटी को क्या देने वाले हैं, आपके जरिए से सोसाइटी के अंदर क्या अच्छाई आने वाली है, व्हाट गुड आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ये बहुत अहम सवाल है और ये सवाल अगर आप क्लियर कर लें, अगर बोले 10 ईयर्स के बाद में मैं कार्डियोलॉजी की फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनूंगा और लोगों की खिदमत करूंगा, लोगों को एक्सपर्ट बनाने दूंगा, मेडिकल फील्ड के अंदर एथिकल प्रैक्टिस में लाऊंगा, ये आपका एक विजन है। आप वो रखिए जब सामने पढ़ना शुरू कर रहे हैं आपके सामने क्लैरिटी होगी, आप बीच में कभी थके नहीं कि नहीं बस हो गया छोड़ देंगे, अब नहीं होगा, मुश्किल होगी। तो ये सारे बीच में जितने चैलेंजेस आते हैं, रुकावटें आते हैं, आप उसको ओवरकम जब करेंगे तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी बात ये कि पहली चीज़ तो आपका मकसद क्लियर होना चाहिए कि क्यों हासिल करना है। दूसरी चीज़ फिर आपके पास विजन होना चाहिए कि आप क्या हासिल करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म विजन, सिर्फ एग्जाम से मैं बोल रहा हूँ। जब आप पढ़ने के सफर के अंदर लगेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई यहाँ पर खत्म नहीं हुई, इस बात का तो समझता हूँ कि आप पूरा एहसास है। सिर्फ आप प्राइज मिलने के बाद में और भी ज़्यादा यकीन होगी, फिर एक लंबा सफर तय करना है। जब आप इस दिन के सफर पर लगेंगे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आएगा, और जब आपके सामने आपका मकसद क्लियर है और विजन क्लियर है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मदीना में वन ऑफ दी foremost or most prominent scholar Islamic history की तो इमाम मालिक रज़ियल्लाहु, और इमाम मालिक के पास में दूर दराज मकाम से लोग इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। और एक मरतबा उनके पास मस्जिद के अंदर सब लोग बैठे हैं, पूरे स्टूडेंट बैठे हैं और वो दर्स दे रहे हैं। अचानक एक आदमी आके पुकारता है, मदीना डेजर्ट है, वहाँ पे घूमते नजर आता है, उसके अलावा शायद ही कोई इतना बड़ा जानवर नजर आता है। तो अचानक मस्जिद के अंदर एक आदमी आके पुकारता है कि देखो मदीना में हाथी आ गया है, और वो हाथी को एलिफेंट को देखने के लिए सब बच्चे उनके पास आते हैं। एक ही बच्चा बाकी रहता है, वो बच्चे का नाम था अल्लास। फिर इमाम मालिक से पूछते हैं तुम जहाँ से आए, ही केम फ्रॉम अंदलुस, तो वो अंदलुस से आए थे। इमाम मालिक पूछते हैं तुम जहाँ से आए वहाँ पे तो एक भी हाथी नहीं होता, जाओ तुम ये हाथी देखो। तो अल्लास अलैहिर्रहमान बोलते हैं कि मैं इतनी दूर से सफर करके हाथी देखने के लिए गया है, मैं उतनी दूर से सफर करके आया आपके पास इल्म हासिल करने के लिए। तो कम उम्र के अंदर इतना जो क्लैरिटी थी कि क्या करना है, वो जब होगा तो कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े हाथी आज हमारे सामने आते हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल फ़ोन की, 10th क्लास में जब कई लोगों में डिमांड कराऊंगा कि फ़ोन दिलाओ, और वो फ़ोन के बाद से जो परफॉर्मेंस में डाउन पर जो होता वो सारे टीचर से अंदाज में डालेंगे, सारे पेरेंट्स से अंदाज में डालेंगे। अगर से दिखता छोटी है जेब में आ जाती वो चीज़, और वो इतना बड़ा हाथी है, इतना बड़ा डाउनफॉल आती है, उसके अंदर डूब के अपने मकसद से लोग भीगे पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दिखता ऐसा कि हम बस स्क्रॉल कर रहे हैं, और स्क्रॉल तकरीबन लोग इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन नहीं दिया तो अपने वाले के फ़ोन में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि इस्तेमाल करते हैं, ये बात यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं। और जब स्क्रॉल करते हैं तो आप एक सोचिए आप एक लिफ्ट में, और जैसे जैसे आप सीढ़ी को ओपन कर रहे हैं आपकी लिफ्ट नीचे जाती है, और आप सोचो कि आप 10 रील स्क्रॉल करें, 20 रील स्क्रॉल करें, नीचे जाते हैं, आप सोचिए कि यू आर गोइंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू -10 -50, आप 100 देखें तो -100 तक चले, उतना नीचे जाने के बाद फिर से वापस से आप ऊपर आ सकते हैं। ऊपर की तो लिफ्ट नहीं है, और आप स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 90% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स आर
کو معلوم ہے کہ ایک بار آپ دن دیکھ کے واپس پھر سے وہ دن دیکھنا گویا کہ ناممکن ہے، پھر سے گھوم جاتے پورے سمندر. جب آپ کو وہ دن ہی نہیں مل رہی، آپ کو اپنے آپ کو ڈھونڈنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں، آپ نیچے ڈالتے جا رہے ہیں، پھر اس سے اوپر آ کے پھر پڑھنا شروع کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے چلو 10 منٹ کا بریک کا فون لگا دیتے ہیں، ذہن اتنا اس کے اندر آکوپائی ہو جاتا ہے، انگیج ہو جاتا ہے کہ پھر واپس ٹریک پہ آنے کے لیے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس سے بہتر ہے سو جانا. 15 منٹ کا ہوتا ہے، 2 گھنٹے آپ سو منٹ میں جانے جسم کا لیے بہت اچھا ہے، دماغ کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ جو بڑے بڑے ہاتھی ہیں جو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوگا اگر آپ اپنے اس منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. چوتھی چیز، ڈسٹریکشن سے بچنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ شارپ اور فوکس بھی بنانا ہوگا. امام مالک علیہ الرحمہ کا یہ واقعہ ہے. He was a great scholar. اور ان کے پاس اگر پڑھنا ہوتا تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتا، بہت زیادہ کرائٹیریا فل کرنا ہوتا. امام شافعی کا نام آپ سے رکھتے، وہ مکہ کے رہنے والے تھے. بائی دا ایج آف 12 ایئرس مکہ کے جتنے اسکالرس تھے ان کے پاس سے امام شافعی علم حاصل کر چکے تھے. اب دیر واز نو اسکالر لیفٹ ان مکہ جن کے پاس ان کو جا کے علم حاصل کرنا تھا، سب کے پاس پڑھے تھے. تب چنانچہ ڈیسائڈ یہ ہوا کہ اب ان کو مدینہ بھیجیں جہاں پہ امام مالک رہتے ہیں، ان کے پاس جا کے یہ علم سیکھیں. امام شافعی بہت کم عمر کے ہیں، ٹینیجر سے بھی کم ہیں، اور ان کے والدہ ان کو مدینہ لے کے گئے اور امام مالک کے ساتھ ریکویسٹ کرتے کہ ان کو ایڈمیشن دے. امام مالک کہتے نہیں، بہت چھوٹے ہیں، اپنے کلاس میں نہیں بٹھاؤں. ان کی والدہ اتنا ضد کرتے کہ امام مالک کہتے ٹھیک ہے بیٹھ گئے. امام شافعی کو کلاس میں بٹھا رہے تھے اور امام مالک بس دیکھیں اس کلاس پتہ تھا، پردے میں کیا تھا کہ دو روپے. امام شافعی تھوڑ کی کلاس انہیں پتہ تھا ہاتھ میں رکھنا ہو. امام مالک کو بہت غصہ آیا، اتنے دور سے آئے. ان کی والدہ اتنا ضد کر کے کلاس میں بیٹھا تھا، بچہ فیل رہا کلاس میں. جب کلاس ڈسمس ہو گئی، پورے بچوں کو بھیج دی امام شافعی کی کلاس میں. تمہاری والدہ کو اتنا ضد کر کے یہاں پہ بھیجیے، کلاس میں کیا کر رہے تھے پردے سے منہ میں پتہ رہتا ہے، ہاتھ میں رکھی مانگ. تو امام صاحب بولتے ہیں نہیں میں نوٹس لے رہا تھا. He did not have enough money to buy a pencil and paper. جب پینسل پیپر کا ترجمہ نہیں تھا، وہ جو کوئل پہنا تھا اور چمڑوں پہ اور پتوں پہ پر لکھتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نوٹس لے رہا تھا. تو امام مالک کو غصہ تھا، میں سے مذاق کر رہا ہوں. تو پھر امام مالک بولتے ہیں کہ یہ کلاس میں کیا ہوگا سنو. So Imam Shafi'i started narrating the class. Imam Malik نے کچھ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ایسا اٹھایا تو یہ narrated in the same way. امام مالک نے کوئی ورڈ بولتا ہے ہاتھ ایسا اٹھایا، امام شافعی بولتے ہوئے ہاتھ ایسا اٹھایا. کوئی اور بات بولتے ہوئے لیفٹ ہینڈ ایسا کر رہا ہے، امام شافعی بھی لیفٹ ہینڈ ایسا کر رہا ہے. پوری کلاس کو ورڈ بائی ورڈ، ایکشن بائی ایکشن پورا سنا تھا. کیونکہ ان کے پاس پینسل پین کے واسطے پیسے نہیں تھے، پتے کی وہ سے جو امپورٹنٹ ورڈ کرتے ہیں ہاتھ پہ اس سے تو لکھ رہے تھے. افٹر 12 ایئرس اور اتنا شارپ کہ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا فوکسڈ ہے کہ پوری کلاس کو پورے کو ریکارڈ کرتے ہیں. آج کے فون بھی شاید اتنا اچھا ریکارڈ نہیں کرتے جتنا اچھا ریکارڈ کی. اتنی اچھی میموری جو تھی وہ فوکس کی وجہ سے. معلوم ہے کہ یہاں آئے ہیں تو سب کچھ حاصل کر کے جانا ہے. نہیں یہ ٹیچر کو کیا آتا پڑھانے میں، اچھا گھر میں جا کے تو وہ میٹیریل میں سے پڑھ لوں گی، ارے وہ آن لائن کلاس میں اچھا پڑھا ہے، یہ کیا پڑھا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ نہ صرف یہ کہ ٹیچر کو ڈسرسپیکٹ ہوتی ہے اس سے، بلکہ نالج کو بھی ڈسرسپیکٹ. وہ کیسا بھی پڑھا ہے ہمارے کی کلاس فوکس. اور جب آپ فوکس کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ اتنا زیادہ کچھ آبزرو کر رہے ہیں اینڈ دیٹ ول بلڈ یور پرسنالٹی. تو یہ 4-5 چیزیں تھیں اس موقع پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپ سب قابل مبارکباد ہیں اور پوری دعاؤں کے ساتھ آگے بھی آسمانوں کی منزلوں کا پہنچتے رہیں اور نئی کامیابیاں حاصل کرتے رہیں. اسی کے ساتھ میں یہ جگہ لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں جناب ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین صاحب اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ میڈیکل کالج، جن کے پاس وقت کی کمی بہت زیادہ ہے، باوجود اس کے پھر بھی آپ کا قیمتی وقت ہم سب کو آپ نے دیا، اس کے لیے ہم آپ کو بہت مشکور ممنون ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کے سامنے ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا ہم کو بننا ہے، کیا کرنا ہے آگے۔ اب ہمیں ایس ایس سی میں ہے، انٹرمیڈیٹ میں ہے، تو اس کے بعد ہم کو کدھر جانا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہم کس طرح جو ہے نا ہمارے قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، کس طرح سوسائٹی کے سوسائٹی کو ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں اب آیا ٹیم کے تمام ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا اہمیت پیش کرنے کے لیے آپ تمام اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب رشید الدین صاحب، مظہر صاحب جو ہمارے ٹریجرر ہیں، جناب عارف الدین صاحب جو مظہر صاحب کے سیکرٹری ہیں، رشید الحسین صاحب جوائنٹ سیکرٹری ہیں، عائشہ میڈم جو ویمن سیکرٹری ہیں، آئے تشریف آئیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم آپ سے قوی امید رکھتے ہیں کہ آئندہ جو ہے نا ہمارے پروگرامس میں ضرور جو ہے نا شرکت فرمائیں گے۔ اب میں کنوینر جلسہ جناب محمد نصیر الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ وقت کی نوعیت کا پاس لحاظ کرتے ہوئے جناب نصیر الدین صاحب آیا میڈیا سیکرٹری ہیں اور اس پروگرام کے کنوینر بھی ہیں، مدعو کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا مقصد آیا کی کارکردگی اور اس کے قیام کا مقصد اختصار کے ساتھ بیان فرمائیں۔ میں کنوینر صاحب کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری سحر البیانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا۔ جناب نصیر الدین صاحب۔ شاہی نصیب پر بیٹھے ہوئے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی صدر جناب محمد یقین الدین صاحب، صدر آئیدہ تلنگانہ، اس پروگرام اڑان کے اسپانسر اظہار جناب سید ابراہیم صاحب سدیپیٹ کے موضوع شخصیت، مہمان خصوصی ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین اسسٹنٹ پروفیسر میڈیکل کالج سدیپیٹ، اعزازی مہمان جناب عبدالقدوس صاحب امیر مقامی اور اس سدیپیٹ کے
सामईन, शेख नसीम पर बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुलबा और तालिबा मुस्तकबिल के बनने वाले साइंटिस्ट, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर और काबिल-ए-एहतराम तुलबा के वालिदैन और सरपरस्त, आप तमाम का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने का मकसद सिटीबैग के मुस्लिम स्टूडेंट्स, सिटी के टॉपर्स को हिम्मत अफजाई और साथ साथ तालीमी रहनुमाई यानी गाइडेंस का भी मुनक्किद करना है। जैसे कि प्रोग्राम का थीम है उड़ान, यानी इकबाल का जो शेर है उससे मुतासिर होकर इस थीम को लिया गया है, उन्वान को लिया गया है। तू शाहीन है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। यानी इस परिंदे की खासियत ये होती है कि बहुत ही ऊंचाई तक उड़ता है, फिजाओं को चीरते हुए आसमान के ऊंचाइयों तक चले जाता है। उसको रुकावट डालने के लिए कौवा जो परिंदा होता है उसको बहुत ही डिस्टर्ब करता है, यानी उसके पीठ पर बैठकर चोंच मारता है। और ये शाहीन परिंदा जो है ना इधर देखता है ना उधर देखता है, नीचे देखता है ना ऊपर, अपनी उड़ान भरते ही रहता है और इतनी ऊंचाई तक चले जाता है कि वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वो उड़ते ही रहता है। और वहां पर कौवा जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो गिर पड़ता है। तो इस तरह से बोलने का मकसद ये है कि हम जब तालीमी मैदान में कदम रखते हैं, एक ही मकसद होता है कि उड़ान, यानी एक मकसद, एक विजन होता है कि हम तालीम हासिल करें। तो इस तरीके से परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है, हवा कभी भी रास्ते का रुकावट नहीं बनता। यहाँ पर देखिए, एक्चुअली मैं आइटा का मोहम्मद नसीरुद्दीन मेरा नाम है और यही वतन से ताल्लुक़ रखता है, तालीम भी मेरी यहीं पर हुई है और गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। जो ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन है, स्टेट का मीडिया और टेक्नोलॉजी का कन्वीनर है, सेक्रेटरी हूँ। तो यहाँ पर मुझे इन्वान दिया गया है आइडा इसलिए कायम की गई और उसके क्या मकासद। आइडा कौमी सतह की एक वाहिद ऐसी तंजीम है, मुस्लिम तंजीम है, असातिज़ा की तंजीम है, जिसमें KG टू यूनिवर्सिटी लेवल तक रिटायर्ड टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स और देखिए प्रोफेसर्स तमाम इसमें शामिल हैं। आइडा का विजन मुसलसल रहनुमाई और तरबियत के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आइडा का हर मेंबर अखलाकी, रूहानी, पेशा वाराना तौर पर तरक्की करे ताकि वो एक जिम्मेदार उस्ताद और माशरे के काबिल कदर असासा बन सके। मकासद तालीमी इदारों में बेहतर तालीमी और अखलाकी माहौल को फरोग दें, यानी असातिज़ा को तरबियत देती है, ट्रेनिंग्स मुनक़्क़द करती है ताकि तुलबा में अखलाकी और माशरे के काबिल बना सके। दूसरा, तालीम को जहालत के असरात से पार करना, इस्लामी नज़रिए तालीम को फरोग देने की कोशिश करना। असातिज़ा की इल्मी, फिक्री, फ़नी, अखलाकी और पेशा वाराना सलाहियतों को फरोग के लिए रहनुमाई करना। चौथा, तुलबा की फिक्री, इल्मी और अखलाकी रहनुमाई करना। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमको सिर्फ स्कूल, कॉलेज और डिग्री के सर्टिफिकेट को हासिल नहीं करना है, बल्कि हमको
तवाज़ुन, इंसाफ, मसावत, इंसानियत की खिदमत और मुस्बित जो सोच है उसको फरोग देना है। एक छोटा सा वाकया मैं सुनाता हूँ। जब सिद्दीपेट से मैं जुबली बस स्टैंड है बस में जा रहा था तो मेरे पास में एक बीटेक का लड़का था। मैंने आला तालीम किया हुआ है, बीटेक तक है। सर्दी का मौसम है, सुबह 6-7 बज रहे हैं, इतनी सर्दी है। आसपास जो दूसरे बैठे हुए हैं, लेडीज बैठे हुए हैं और खिड़की खोल दी और इतनी ठंडी हवा है, वो लोग एतराज कर रहे थे खिड़की बंद कर दें, लेकिन वो इतनी तेज ठंडी हवा आ रही है, क्यों खिड़की बंद करो। यानी यहाँ पर देखिए इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी उन लोगों में क्या बोलते हैं तब्दीली नहीं आ रही है। लिहाजा हम असातिज़ा क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ताकि तलबा में इसको फरोग दे सकें, उनके किरदार को संवार सकें। सरकारी तालीम की पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह हर 5 साल में क्या होता है, हिंदुस्तान के पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। गैर सरकारी कर्सियात यानी सिलेबस का जायजा लेना, यानी हमारी जो टीम है यानी सिलेबस में जो तब्दीलियां आ रहे हैं, एतराज आ रहे हैं, दूसरे चीज़ों को शामिल किया जा रहा है, उस पर नज़र रखते हैं और जो एतराज की चीज़ें जो होती हैं हम आला ओहदेदार मुहैया अथॉरिटीज़ को हमारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उन चीज़ों को हटा सकें। हम वतन असातिज़ा और तलबा को इस्लाम से मुताल्लिक़ गलत फहमियां दूर करना। 7वां, असातिज़ा के जायज़ हुकूक की कोशिश करना, यानी जायज़ हुकूक। अक्सर तंजीमें जो होती हैं टीचर्स की सैलरी के लिए, उनको गैर कानूनी तौर पर प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफर्स के लिए प्रमोट करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी तंजीम है जायज़ हुकूक सही तौर से उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम कोशिश करते हैं। मुल्की, समाजी और ख़ास तौर पर मुसलमानों में तालीम को फ़रोग़ देने की कोशिश करें। इस तरह के प्रोग्राम्स रखिए, यानी मुस्लिम तलबा को हिम्मत अफजाई करना और कैरियर गाइडेंस को आगे क्या करना है ज़िंदगी में, हम कैरियर गाइडेंस के ज़रिए से उनको बताते हैं। आइंदा जदीद तदरीस तरीके तालीम से असातिज़ा को आरास्ता करते हैं, इनकी इल्मी, फ़नी, फ़िक्री, पेशा वाराना न्यू टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देते हैं। यानी हमारे तंजीम में एक सेल है मीडिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हम ये करते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जैसा कि ChatGPT है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके ज़रिए से इसको सीख कर असातिज़ा को ट्रेनिंग देना। आजकल क्या है बोले तो असातिज़ा बहुत पीछे हैं। अगर असातिज़ा इस नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है तो वो एक हैंडीकैप है। लिहाजा हम क्या करते हैं, सारे असातिज़ा को टेक्नोलॉजी से वाकिफ करते हैं, ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए से बहुत कुछ किया जा सकता है। एनिमेशंस कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, यानी तलबा को पढ़ाने के दौरान लेसन प्लान्स बना सकते हैं एनिमेशंस देकर। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि ये हम अब देखिए मैं अपने स्कूल के तलबा को ही यानी ChatGPT को इस्तेमाल करते हुए किसी उन्वान को, तहरीर को, एस्से राइटिंग को किस तरीके से उसमें से गूगल में से निकालना और मुख्तलिफ जो गूगल के ऐप्स है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके छोटे छोटे पोस्टर्स कैसे बनाना है, मैं जो हायर क्लासेस है उनको भी सिखाता हूँ और जो टीचर्स हैं उनको भी बताता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा जो आइडा का मकसद है उसको हम लोग करते रहते हैं। लिहाजा क्योंकि वक्त की कमी है, मैं दूसरे मुखर्रिर को वक्त देना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर शेर के साथ खत्म करता हूँ। मंजिले बहादुरों का इस्तेक़बाल करती है, बुज़दिलों को रास्ते का खौफ ही मार देता है। यानी जो बहादुर होते हैं मंजिलें उसका इस्तेक़बाल करती हैं, जो बुज़दिल होते हैं रास्ते में खौफ से ही डर जाते हैं। तो इस तरीके से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप लोगों का जो मुझे मौका दिया है।
जैसा कि आप फरमा रहे थे कि मंजिलें बहादुरों का इस्तेमाल करती हैं, मंजिलें बहादुरों का इस्तेमाल करती हैं, बुज़दिलों को रास्ते का खौफ नहीं मार देता है। क्या बात है सर? नहीं है नाउमीद तलवार अपनी कश्त वीरा से, नहीं है नाउमीद तलवार अपने कश्त वीरा से, जरा न हो तो ये भी बड़ी जरफे जैसा। बिल्कुल सर, उनको थोड़ी मेहनत की जरूरत है। नसीर साहब ने फरमाया, आप फरमा रहे थे कि स्टूडेंट्स शाहीन की तरह बनना चाहिए। शाहीन की इंफरादियत ये है, जैसे कि आप फरमा रहे थे, शाहीन बहुत ऊंचा उड़ती है, तेज नजर रखती है। एक और भी खासियत शाहीन की है कि वो किसी दूसरे का शिकार नहीं खाती, अपना शिकार खुद करती है। और जैसे कि नसीर साहब फरमा रहे थे कि हम सबको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, और इससे जो है ना किस तरह हम हमारी कौम की खिदमत कर सकते हैं, किस तरह जो माशरे की सोशल समाज की खिदमत कर सकते हैं, कोशिश करना है। एक टेक्नोलॉजी का भी आपने जिक्र फरमाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि दौर हाजिर में इनकलाब बर्पा कर रहा है। अब इसके बाद मैं आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर जनाब अलहाज सलीम साहब के बारे में चंद जुमले यहाँ पर मैं आप तमाम की शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि जनाब अलहाज इब्राहिम सलीम साहब कोई तारुफ की मोहताज नहीं, आप सरजमीन सिद्दीपेट की मुअज़्ज़िज़ तरीन शख्सियत में से एक हैं। आप सरजमीन सिद्दीपेट में अहले दिल तसव्वुर किए जाते हैं। आप ऐसे बहुत से कार्य खैर अंजाम देते आ रहे हैं जिससे मिल्लत को बहुत सा फायदा पहुंचता जा रहा है, जिसमें मक्का मस्जिद की तामीर नौ आपका एक बेमिसाल कारनामा है। इसके अलावा तलबा तालिबात को तालीमी इमदाद आप न सिर्फ वतन अजीज के बच्चों को, वतन अजीज के तलबा और तालिबात को, बल्कि बैरून वतन भी जो है ना अपनी खिदमत तालिब इल्मों को पहुंचाते आ रहे हैं। वतन अजीज में अहले सरमत बेशुमार लोग मौजूद हैं, वतन अजीज में अहले सरमत लोग बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये काम के लिए आपको मुंतखब फरमाया कि आपको तौफीक हासिल हुई है। ये हमारे हम सब के लिए बड़ी खुशहाली बात है। मैं इस शेर के साथ कि आपको मधु करता हूँ कि तुम एक मुस्तकिल उन्वान हो हस्ती के फसाने में, तुम एक मुस्तकिल उन्वान हो हस्ती के फसाने में, तुम्हें तारीफ दोहराते रहेगी हर जमाने में। आखिर में मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम अफराद खानदान को अच्छी सेहत वाली जिंदगी के साथ साथ उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। ये मुराद आज के स्पॉन्सर जनाब इब्राहिम सलीम साहब वाया में इजहार करें। बड़ी खुशी है इंशाअल्लाह अगर ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा नहीं उनको मुबारकबाद देते हुए इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे और इससे बड़ा अवार्ड देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, और मेहनत की इंशाअल्लाह और मार्क्स ज़्यादा आदि एजुकेशन हायर एजुकेशन में इससे बड़े प्रोग्राम करते जाएंगे इंशाअल्लाह।
न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखते हो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखते हो। मेरे मुराद अब्दुल वदूद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आइडा के तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस बेहतरीन प्रोग्राम को जो है अमल में लाया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इसी तरीके से आइडा के जिम्मेदारों को आगे भी मुस्तक़बिल में जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने का अल्लाह ताला ने मौका दे। साथ ही साथ मैं तशरीफ फरमा तमाम हज़रात का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त निकाल कर जो है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में यहाँ तशरीफ लाए हैं। ख़ासतौर पर मेरे मुराद जनाब मोहम्मद यकीनुद्दीन साहब जो कि बहुत मशहूर शख्सियत हैं, लेकिन इसी डिबेट के इस प्रोग्राम में आपने जो है जो हमारा इस प्रोग्राम की जो है जो इसकी मदद हमारे यहाँ मदद तय की है। अल्लाह ताला के यहाँ आने को कबूल फरमाए। मैं तमाम तलबा उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जो मेहनत करके आप इस काम में जो है जो यहाँ तक कामयाबी कि जो इस मंजिल को आपने जो हासिल किया है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मज़ीद आपकी जो है इल्म में, आपके अमल में, आपकी सलाहियतों में अल्लाह ताला मज़ीद इजाफा फरमाए। इंशाअल्लाह आइडा और जमात आप तमाम हज़रात के साथ है। मुस्तक़बिल में भी इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए से इंशाअल्लाह आपके सामने मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। मैं जनाब साद अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग का बताता बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट के वक्त में जो है ना अपनी बात को कंक्लूड कीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइडा के जानिब से स्पॉन्सर पे जनाब मुलाजिम सैयद इब्राहिम साहब जो आपको जो स्पॉन्सर करेंगे तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और आइडा की टीम जो लोग इसके पीछे जो जिद्दोजहद करे हैं उनके लिए भी अस्सलाम वालेकुम। और जो भी डिग्री का प्लेयर्स जो मेहनत से मुश्किल से ये काम अंजाम में लाए हैं उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 मिनट के वक्त दिए हैं, कोई मुश्किल नहीं। 2-3 चीज़ बता के आपको मैं खत्म करना चाहूँगा। आप मार्क्स अच्छे लाए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके पीछे जो कामयाब जो हासिल करते हैं तो कामयाबी देखा जाए when you are going to reach the success the people seeing the success only। और उसके पीछे जितनी मेहनत हुई है आपके वालिदैन को मालूम है, आपको मालूम है या आपके टीचर को मालूम है। तो दुनिया जब कहावत है खामोश इस तरह मेहनत करो कि आपकी कामयाबी तहलका मचा दे, तो ये चीज़ है आप जो देख रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि बस इस बार मैं जो स्टडी काउंसलिंग जो देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एमसेट इंजीनियरिंग नीट ये 2 ही ऑप्शन चुन रहे हैं। इससे तो बड़ा नुकसान हो रहा है। कैसा सब लोग तो इंजीनियर अच्छे नहीं बन सकते, सब लोग डॉक्टर भी अच्छे नहीं बन सकते, बस सब लोग में थोड़े लोग अच्छे लायक बन सकते हैं, अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ है, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ये बीच में एक जगह गया था तो लोग पूछे मुझे सर एम्प्लॉयमेंट नहीं है कितना नौकरी नहीं मिल रही। तो बिल्कुल है, आप जो सोच रहे हो नौकरी नहीं मिल रही, मगर पॉलिटिकल में इतने नौकरी खाली है, एमपी खाली है, एमएलए खाली है, मिनिस्टर खाली है, सीएम पोस्ट खाली है। आप चाहे तो अचीव कर सकते हैं बीइंग एजुकेटेड। तो खाली हर जगह है, जो अपन सोच रहे हैं जो अपनी चाहत की चीज़ है वो मिलना मुश्किल है। तो कॉम्पिटिटिव एक तरफ जा रहा, खाली एक तरफ जा रहा। स्टिल टुडे आज भी रेसिज्म चल रहा, आईटी में जॉब की कमी है लोग बोल रहे हैं, और ये गलत है। जो इंटेलिजेंट है, जो इनोवेटिव है, जो क्रिएटिविटी है, आज भी उनको नौकरी मिली है। हाल में 2 दिन पहले मैं फेसबुक पर देखा था एक लड़की को 2 करोड़ पर मंथ सैलरी की नौकरी मिली। तो ये चीज़ आपके नज़रिए पे डिपेंड है।
कंपटीशन तो बहुत है, किस चीज में कंपटीशन है? जो आप कॉमन जो चीज को पढ़ते हैं, जो कॉमन नजर से देखते हैं तो कंपटीशन ज्यादा है। जो इनोवेटिव आइडिया से, जो क्रिएटिविटी से, जो इंटेलिजेंस से जो आप सोचते हैं वहां पे कमी बहुत है। तो ये चीज में देखिए आप सिंपल नजर से होता है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप अच्छे से यूज करेंगे ना तो सबसे काम है। तो ये नजर रहना चाहिए। और दो चीज का फर्क है जो मैं आज के जमाने में लड़के ज्यादा पढ़ते हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं। अचीवमेंट भी लड़कियों का ज्यादा है। इवन तो नॉट ओनली मुस्लिम्स, irrespective of religion, irrespective of caste, इवन तो हमारे जो स्कूल्स में है लड़कियां अच्छे अचीवमेंट्स करते हैं, लड़के नहीं करते। तो जमाना ये भी दौर आने का शायद हो सकता है, घर का पूरा वर्क पे संभालते हैं और अपना नौकरी करना चाहते हैं, जो भी हो सकता है फ्यूचर में। तो इसका अचीवमेंट का डिबेट है, आप मेहनत अच्छा करें। लास्ट एक ही बात बोलता हूँ कि इंटेलिजेंस में भी फेड समटाइम्स बट हार्ड वर्क इज नेवर फेड। आप मेहनत इतनी सही से करें। इस्लाम में खुद है, इस्लाम में अपनी एक जायज है, ये पूरी दुनिया के कौम को अपन बता सके। आप ये बुक है 7 हैबिट्स ऑफ द सक्सेसफुल पीपल पे बुक है, वो पढ़ो। हदीस पे जो कुरान में जो चीज लिखी गई है वो लिखे। लोग अब कुरान नहीं पढ़ के परेशान होते, वो बुक पढ़ के बहुत गवाह करें। तो प्रॉब्लम यही है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुरान अगर किसी को समझ में आता है तो दूसरे बुक्स भी पढ़ो तो आपको वही आयत मिलेगी। 7 अचीवमेंट्स में पहला अचीवमेंट्स क्या है? 5 AM। जो दुनिया में सक्सेस लोग हैं वो सवेरे 4-5 बजे उठते हैं। ये तो अपने इस्लाम में हर जगह है। और जो चीज 5 AM बुक है, 5 AM ये बुक भी आप पढ़ो। ये बुक में भी जो हदीस में जो फायदे हैं फजल में उठे के पूरे किताब में लिखे गए। तो सक्सेस कौन हो रहे हैं? वो बुक पढ़ के लोग दूसरे हो गए, अपने लोगों से जाए, यही प्रॉब्लम। तो इस चीज पे गौर करिए, हदीस के साथ साथ इस्लाम के साथ साथ अब दुनिया की पढ़ाई जरूरी है पढ़ना, दुनिया को चेंज करना होगा। यहाँ पे एक अच्छा कैप्शन लगा है, उड़ान टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। अब उड़ते हैं तो उड़ने का सलीका आप में है तो उड़ते हैं, जो उड़ते हैं तो दुनिया का देखने का नजरिया अलग हो जाता है, इंडिया मैप अलग हो जाता है, दुनिया का मैप अलग होता है। थैंक यू वेरी मच गिविंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू से सम वर्ड्स। आप मेहनत करिए और कंसिस्टेंसी में रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्जाम है पढ़ते हैं, नीट एग्जाम है पढ़ते हैं, आप कल एग्जाम है जैसा पढ़ो। कंसिस्टेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सेस इन एनी जॉब। आप पहले दिन से जैसा मेहनत करो, आज ये मेरा आखिरी दिन है, अगर ये काम करेंगे ना तो दुनिया में आपको कोई नहीं बता सकता। आप अल्लाह ताला आपको कैसी कामयाबी दे और आपकी मेहनत का पूरा फल दे। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ फिजिकल साइंस के टीचर हैं तेलुगु मीडियम में, और बहुत ही इनोवेटिव और 24/7 हर वक्त बिजी रहते हैं। इवन छुट्टियों में भी सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स और दूसरे स्कूल्स में जाकर साइंस के एक्सपेरिमेंट्स एग्जिबिट्स वगैरह का यानी बच्चों को बताते हैं। और जो भी साइंस फेयर होता है उसमें बराबर शिरकत करते हैं नेशनल अवार्डी में, क्योंकि हम लोग साथ में एक साथ क्या बोलते सो साइंस फेयर्स में अक्सर मिलते थे। वैसा साथ बहुत ही काबिल है, ग्रुप्स के एग्जाम्स भी देते हैं, इवन साइकोलॉजी भी टीच करते हैं, टीटीसी वालों को, डीएससी वालों को, ग्रुप्स के एग्जाम्स को भी साथ क्या बोलते हैं कोचिंग वगैरह देते हैं। बहुत ही एक्टिव सार है। अगर वक्त रहता तो साथ 2 घंटे भी बोलने तैयार रहते हैं, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हम साथ को ज़्यादा वक्त ना दे सकते। शुक्रिया सर। जनाब साद अली साहब जो फरमा रहे थे कि मेहनत खामोशी से करें तो कामयाबी तुम्हारी कामयाबी में शोर मच जाती है। बहुत शुक्रिया सर। अब इसके बाद मैं एक ऐसे मर्द मुजाहिद को आप तमाम सुनने के लिए समारोह के लिए मैं आप भेज रहा हूँ, जिन्होंने फिस्ताई ताकतों के आगे झुकना गवारा न किया, बल्कि जो है डट कर उनका मुकाबला किया। जो आज की इस महफिल के मुबरवा और खुसूसी मेहमान हैं, मेरे मुराद जनाब
यकीन उद्दीन साहब जो आयाटा तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आपको मैं मदद करता हूँ इस यकीन के साथ कि मैं पर मदद करता हूँ आपको इस यकीन के साथ कि वो बतौर मुशर्रा हम सब की रहनुमाई फरमाएं। इस यकीन के साथ आपको मैं मदद करता हूँ कि नाम उसका मिल्लत बैदा के परवानों में है, नाम उसका मिल्लत बैदा के परवानों में है, वो बहर सूरत अजीम व शान इंसानों में है। बलबला इस्लाम का उसकी रगों में है रवा, बलबला इस्लाम का उसकी रगों में है रवा, लर्जा उसकी फिक्र से बादल के ऐवानों में है। जनाब यकीन उद्दीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। Dignitaries on the dais and off the dais, especially Muhtaram Janab Al-Haj Sayyid Ibrahim Salim Sahab, सिद्दीपेट की माननीय शख्सियत, आज के इस प्रोग्राम की स्पॉन्सर, और फिर मोहतरम मेरे मुकामी प्रोफेसर साहब और आइटा के जिम्मेदारान जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, मोहतरम सलीम साहब, अजहर साहब और आइटा की टीम सिद्दीपेट और इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद इस कौम की उभरती हुई मेरी अजीज़ बेटियों और अजीज़ बेटों और पेरेंट्स तो यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बहुत बड़े प्रोग्राम के अंदर आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कौम के कम्युनिटी के उन स्टूडेंट्स को जो बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करते हुए बेहतरीन मार्क्स लेके आए हैं, बेहतर अचीवमेंट उन्होंने किया है और उस अचीवमेंट को रिकग्नाइज करने का काम आइटा सिद्दीपेट कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरी नज़र में, इसलिए कि अप्रिसिएशन, रिकग्निशन बहुत अहम तरीन काम होता है। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स का उनके अचीवमेंट के ऊपर उनको मुबारकबाद पेश करना, उनको रिकग्नाइज करना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनकी हिम्मत अफजाई करना, ये बहुत बड़ा काम है और ये मौका आइटा सिद्दीपेट को हासिल हुआ है। मैं पूरी टीम सिद्दीपेट की आइटा की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ मैं इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर जनाब अलहाज इब्राहिम सलीम साहब का आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ कि बहुत सारे काम आपने किए होंगे और बहुत सारे लोग कर रहे होंगे जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ के नाम पर जाने जाते होंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के नाम पर जाने जाते होंगे, सवाब की नीयत से किए जाते होंगे, लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जो कंट्रीब्यूशन आपने किया है सिद्दीपेट के खासतौर पर मुस्लिम तलबा और तालिबात के सिलसिले में, इसे ज़माना याद रखेगा, तारीख याद रखेगी और इसका बहुत बड़ा फायदा इंशाअल्लाह इस कम्युनिटी को होगा। अजीज तालिबात, अभी मैं देख रहा था कि इस प्रोग्राम का एक उन्वान दिया गया है, थीम दिया गया है। उसका थीम जो दिया गया है वो है उड़ान। उड़ान परिंदों की जो उड़ान है, शाही की जो उड़ान है, उकाब की जो उड़ान है, जिसको मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ पोएट्स ने अपनी पोएट्री के अंदर जगह दी है। ज़मीन पर रह के भी ऊंची उड़ान करते हैं, नज़र में हम भी खुला आसमान रखते हैं, हमारी सोच पे पैर बिठाने वाले तो हमें हमेशा चीज़ें कमान रखते हैं। ये वो तालिबात हैं, ये वो तलबा हैं जो एक उड़ान के साथ, एक अचीवमेंट के साथ एक ज़बरदस्त उड़ान टेकअप करने के लिए अपनी कैरियर के मैदान के अंदर आगे आ रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है इसके दो मकसद हैं मेरे सामने। एक तो मकसद ये है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो 10th इंटरमीडिएट एसएससी के अंदर आए हैं, बेस्ट मार्क्स लेके आए हैं, इंटरमीडिएट के अंदर सिटी के लेवल के ऊपर अपने अपने ग्रुप्स के अंदर उन्होंने टॉप किया है, उनको तहनीत पेश करना, उनको रिकग्नाइज करना और उनको जो है ना मुबारकबाद पेश करने का प्रोग्राम का एक मकसद है। साथ ही साथ उनको कैरियर गाइडेंस भी फराहम करना इस प्रोग्राम का एक
ڈاکٹر طلحہ فیاض نے آپ کے سامنے کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، آپ کو ایک فکر دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے، فلاسفیکل جو اپروچ ہو سکتا ہے ایجوکیشن کا، اور پھر ایجوکیشن کی وجہ سے جو کچھ فائدے ہو سکتے ہیں، جو اچیومنٹس ہو سکتے ہیں، جو ہماری تھنکنگ ہونی چاہیے، ہماری فکر ہونی چاہیے، اس کو آپ کے سامنے رکھیں۔ لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں تشریح برقرار ہے، ابھی بھی پوری جلد سے پیاس نہیں ہوئی ہے۔ کیریئر گائیڈنس کے نام پہ جو چیزیں طلبا کو ملنی چاہیے وہ دراصل میں ابھی نہیں ملی۔ پرابلم یہی ہے اس کمیونٹی کا، اس امت کا، اس قوم کا، کہ اس قوم کو کیریئر گائیڈنس کی سہولت کہیں موجود نہیں ہے۔ ہمارے گنے چنے اساتذہ ہیں، گنے چنے ٹیچرز ہیں جو اس طرح کا سینس رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، وہ کیریئر گائیڈنس کے سلسلے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن بہت کم ہے۔ اور کچھ جنہیں کیریئر گائیڈنس کی ضرورت ہے تو انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے، ان کے پیرنٹس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو بہترین کیریئر گائیڈنس فراہم ہو، اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے بچے اپنے کیریئر کو بنانے کا کام کر سکیں۔ دیکھیے ایک بات بہت اچھی طرح ذہن رکھ لیجیے کہ اس کمیونٹی کے سلسلے میں جنہیں مسلمس کہا جاتا ہے، اور دو ٹوک اور واضح الفاظ میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو ایجوکیشنلی بیکورڈ کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ یہ بات لکھ لیجیے، اس کمیونٹی کو ایجوکیشنلی بیکورڈ کمیونٹی کا نام اس ملک کے اندر دے دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، حالانکہ اس کی بنیادیں ایسی نہیں ہیں، حالانکہ یہ امت، یہ قوم، یہ کمیونٹی اس دنیا کے اندر تعلیم کو، ایجوکیشن کو، نالج کو، وزڈم کو پیدا کرنے، اسے پھیلانے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ذمہ دار کی کمیونٹی ہے، یہ امت ہے، یہ قوم ہے۔ لیکن حالات کے مارے اس کمیونٹی کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس کمیونٹی کو خود کیریئر گائیڈنس کی ضرورت پڑ گئی، اسے ایجوکیشنلی بیکورڈ کمیونٹی کا لیبل اس کے اوپر لگا دیا گیا۔ اب صورتحال بدل رہی ہے، ان بچیوں کو دیکھ کے، ان بچوں کو دیکھ کے جو بہترین ایجوکیشن کے ساتھ، بہترین ٹیلنٹ کے ساتھ اور اسکلز کے ساتھ آگے آ رہے ہیں، تھوڑی سی امید بن رہی ہے کہ ضرور یہ کمیونٹی، اس کمیونٹی کے بچے، اس کمیونٹی کی بچیاں جو بدنما داغ اس کمیونٹی کے اوپر لگا ہوا ہے کہ یہ ایجوکیشن بیکورڈ کمیونٹی ہے، اس کو دھونے کا یہ کام کیا ہے۔ اسی لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ مزید اس طرح کے پروگراموں کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہمارے بچوں کو، بچیوں کو اور پیرنٹس کو معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ واٹ آفٹر ایس ایس سی کے بعد کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا کورسز اویلیبل ہیں۔ ابھی اساتذہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد صرف نیٹ اور ایم سیٹ انجینئرنگ کے دو شعبے جہاں ہمارے سامنے ہیں، جس کی طرف ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں، اسی کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ بے شمار کورسز ہمارے سامنے موجود ہیں، ایس ایس سی کے بعد بے شمار کورسز موجود ہیں، ڈفرینٹ اسٹریمس ہیں جو ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آنے چاہیے۔ ایس ایس سی کے بعد کیا کیا کورسز ہو سکتے ہیں، آرٹس میں کیا کیا کورسز ہو سکتے ہیں، سائنس میں کیا کورسز ہو سکتے ہیں، پالیٹیکنک کے اندر، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر کیا کیا کورسز ہو سکتے ہیں، ووکیشنل کورسز کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور کتنے جو ہے نا سال کے کورسز ہیں، اس کا اسکوپ کیا ہے، اس پہ آگے جا کے آپ کی جو ہے نا ترقی، آپ کے کیریئر میں کیسا بن سکتا ہے، یہ تفصیلات آپ کے لانے کے سامنے لانے کی دراصل میں ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں ایٹا ٹیم کی ڈبیٹ کو ایک بار پھر یہ کہوں گا، اس موضوع کے اوپر مزید ایک وقت غور کیجیے، دیگر تمام احباب کا تعاون لیجیے، اور اس طرح کا جو کوئی جو مزید ایک ایکسپو کم از کم آپ لگائیے، جس کے اندر ہماری بچیوں کو، بچیوں کے پیرنٹس کو بہت کلیئر کٹ انداز میں سامنے ان کی پکچر آ جائے کہ ایس ایس سی کے بعد کیا کیا کورسز کن کن انسٹیٹیوٹ میں ہوتے ہیں، اور کس کے کرنے کے بعد کیا فائدہ ہونے والا ہے، کیریئر کیا ہونے والا ہے، اور پھر آگے جابس کیسے ملنے والے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر تبدیلی کیسے ممکن ہے۔ یہ بہت کلیئر کٹ 2 جمع 2 4 کی طرح ان کے سامنے آ جائے۔ اس کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد انہیں کیا کرنا ہے، وہ کس اسٹریم کے ساتھ کس گروپ میں انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں، آگے ان کے لیے کیا کیا اسکوپس موجود ہیں، وہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہم ڈاکٹر بننے کی دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو دیکھا ہم نے انجینئر لوگ بن رہے ہیں، انجینئر بننے کی دوڑ میں ہم لگے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی محلے میں پہلے کے انجینئر کو آواز دے دی جائے، ہر گھر سے 2 انجینئر میں مسئلہ نکل کے آ جائے۔ یہ موجودہ صورت ہے۔ حالانکہ بے شمار کورسز ہیں، نمبر آف ووکیشنل کورسز ہیں، مختلف قسم کی اسٹریمز کے اندر کورسز موجود ہیں، اس کو ایک مرتبہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ہماری بیٹیوں سے اور بیٹوں سے کہوں گا کہ ڈونٹ بی ڈیپینڈنٹ آن ادرس، دوسروں پہ ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے طور پہ آپ چاہتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ فنگر ٹپس کے اوپر دنیا آپ کی آ گئی ہے، یہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، گوگل آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈفرینٹ سرچ انجنز آپ کے ہاتھ میں ہیں، جسٹ گو
इस वक्त जो फैसला लिया जाएगा, 10 के बाद जो फैसला लिया जाएगा, वो आपकी जिंदगी का अहम तरीन फैसला होगा, वो आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होगा। जो कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, जो स्ट्रीम आप सेलेक्ट करेंगे, वो आपको आपके आगे कैरियर बनाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके लिए आपके समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर मौजूद टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, आइटा के जिम्मेदार हैं, इनसे आप मुलाकात कीजिए, ये जरूर इंशाल्लाह आपकी जरूर मदद करेंगे। हमारे इस्लामी के जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं, ये जरूर आपको इस हवाले के साथ आपकी मदद करेंगे। दूसरी जो चीज मैं आपको इस मौके पर ये कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन का तस्करा आपके सामने आया है। ये एक ऑल इंडिया लेवल के टीचर्स की एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मुल्क के अंदर टीचर्स की फिक्र साजी का काम कर रही है, ज़हन साजी का काम कर रही है। उनकी जो रिस्पांसिबिलिटीज हैं, वो रिस्पांसिबिलिटीज को वो फुलफिल वो कर सके, इस काबिल में बढ़ाना चाहती है, उनकी टैलेंट्स को उठाना चाहती है, उनकी स्किल्स को डेवलप करना चाहती है, और इस तरीके से क्या जिम्मेदार किस्म के एक टीचर को इस समाज में अंदर देना चाहती है। इसलिए कि टीचर का रोल बहुत बड़ा है, टीचर मेंटर है, टीचर मुरब्बी है, टीचर सब कुछ है, टीचर इस सोसाइटी का ड्रीम होता है। आइटा इसको समझती है, इसीलिए आइटा की ये जिम्मेदारी है, कोशिश कर रही है कि इस समाज के अंदर जो मौजूद टीचर्स है उनको इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह से अदा कर सकें। इस मौके के ऊपर मैं तीसरी नुकते को आपके सामने करना चाहूँगा, वो ये है, मेरे सामने बहुत सारी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, और बच्चियां खास तौर बैठी हैं। अभी मतलब फरमा रहे थे कि बच्चियों के पढ़ने का रेशियो बहुत ज्यादा हो गया, गर्ल्स पढ़ रही हैं, गर्ल्स के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट से नजर आ रही है, गर्ल्स बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जितने रिजल्ट्स हम देखें एसएससी के, इंटरमीडिएट के, उन सब के अंदर हमने देखा कि गर्ल्स का गलबा है, गर्ल्स जो है ना आगे मैदान मान के आगे जा रही है। इस मौके पर यहाँ बैठी हुई मैं बेटियों से कहूँगा कि एसएससी और इंटरमीडिएट कंप्लीट करके आगे बढ़ रही हैं, उन्हें इस बात को तय कर लेना चाहिए, उनके पेरेंट्स को इस बात को तय कर लेना चाहिए कि हम एजुकेशन कंटिन्यू रखेंगे और जारी रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा जब तक आप एजुकेशन का दामन थामे रखेंगे तब तक सूरत हाल बेहतर रहेगी। इस वक्त दामन आपके हाथ से छूट जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे। मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी जो एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमने एजुकेशन का दामन हाथ से छोड़ा। इसलिए बच्चियां हों, बच्चे हों, उन्हें एजुकेशन का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात का फैसला इस प्रोग्राम से करके उठना चाहिए। अगर कोई सोच रहे हो कि एजुकेशन यहाँ रोक दी जाएगी, लड़कियाँ हैं, उनके दीगर मसाइल हैं, उनकी शादियाँ हैं, इनका ब्याह है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको अपने जहन से इस बात को खोज के फेंक देना चाहिए कि ये सही अमल नहीं है, सही सोच नहीं है। इस प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ बैठे पेरेंट्स से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों की तालीम और अपने बच्चों की तालीम को जारी रखिए, और तालीम जारी रखने से पहले सोचिए कि क्या चीज़ कैसे करनी है और उसको आगे बढ़ाना। एक बहुत बड़ा मसला हमारे दरमियान में ये भी आता है कि जो मुस्लिम गर्ल्स स्पेशली हैं, इनके पर ये जो पर्दा है, ये इनका जो हिजाब है, ये जो है रुकावट बन जाता है, जिसके नतीजे के तौर पर हमारी बच्चियां आगे नहीं बढ़ सकती। ये गलत कॉन्सेप्ट है। इस गलत कॉन्सेप्ट को प्रूव करना हमारी बेटियों की जिम्मेदारी है कि वो आगे आए। पर्दा हमारे घरों के ऊपर दिया गया है, पर्दा हमारे जिस्मों के ऊपर दिया गया है, हमको गैर मर्दों के सामने खुले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। हम इसको पकड़ के भी रखेंगे, लेकिन ये बात भी प्रूव आपको करना है कि पर्दा हमारे जहनों के ऊपर नहीं दिया गया है, पर्दा हमारे टैलेंट्स और स्किल्स के ऊपर नहीं दिया गया है, पर्दा हमारी सलाहियतों के ऊपर नहीं दिया गया है। हम अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और दुनिया के जितने शोबेदार हो सकते हैं, जहाँ जहाँ हम जाके जा सकते हैं, हमारे अपने वैल्यूज के साथ, हमारी अपनी टीचिंग्स के साथ, हमारे अपने कस्टम्स के साथ, हमारे अपने तर्ज जिंदगी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस बात का तैयारी हमारी बेटियों को करना चाहिए। अगर ये फैसला नहीं करेंगे तो फिर ये रुकावट बनती चली जाएगी, और जमाना इसी बात को लेकर आपको ताने देगा कि दरअसल में ये रुकावट का बहुत बड़ा सबब है, बहुत बड़ा रीजन है। इसको भी हमारे बच्चों को गलत प्रूफ करना है, पेरेंट्स को गलत प्रूफ करना है। बहरहाल इस मौके के ऊपर मैं तमाम तलबा और तालिबात को जो आज अवार्ड देने वाले हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को सलाम पेश करता हूँ कि आपकी अपनी जद्दोजहद और मेहनत के नतीजे के तौर पर आपकी बच्चियाँ और आपके बच्चे अचीवमेंट हासिल किए हैं, और उनको आज यहाँ रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तहनीत पेश की जा रही है। इस सिलसिला आपका जारी रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए, और बहुत आगे तक आपको बढ़ते चले जाने का काम आपको करते रहना चाहिए। मैं एक मरतबे सिटीपेट की पूरी टीम को, आइटा की टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए और तमाम यहाँ के जिम्मेदारान हैं जो इस प्रोग्राम की कामयाबी के अंदर उन्होंने रोल प्ले किया है, उन सबको मुबारकबाद पेश करते हुए अपने लोगों को समेटता हूँ और अल्लाह से दुआ करूँ कि
कि जिस मकसद के लिए प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है उसकी उनके मक़ासद पूरे हों और हमारी ये बच्चियाँ, हमारे बच्चे चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद किसी अच्छे मुकाम पर हमें नजर आए, इनके कैरियर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, ये बहुत आगे बढ़े और ज़िंदगी के अंदर खुशहाली की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी खुद की ज़िंदगी को भी, पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी को भी और पूरे समाज के साथ बदलने के काबिल बन सके। मेहमान खुसूसी जनाब वज़ीर साहब अभी हम सबसे मुखातिब थे, वहाँ फरमा रहे थे कि आज हमारी कौम जो है बैकवर्ड कम्युनिटी, तालीम बैकवर्ड कम्युनिटी को जो है दर्जा दिया गया है। हमारी विज़डम हमसे छीन ली जा रही है। और साथ ही साथ आपने कहा कि हमारे कौम को चाहिए कि वो तालीम का दामन कभी अपने हाथ से न छूटने दें, तालीम का दामन कभी अपने हाथ से छूटने न दें और पर्दा हरगिज़ तालीम और तरक्की में रुकावट कभी नहीं बन सकता। गुर्बत भी हरगिज़ तालीम में रुकावट नहीं बन सकती। जैसा कि बहुत किसी शायद हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज ही इस तरह से हुआ है। तो बहरहाल मेहमान खुसूसी की बातों का लबे-लुबाब यही निकलता है कि लगन हो जिनके दिल में पहुंच जाते हैं, लगन हो जिनके दिल में वो पहुंच जाते हैं मंजिल पर, हवादिस रास्ते में दाम फैलाया ही करते हैं। जज़ाकल्लाह साहब। देखिए आज के इस प्रोग्राम की तरतीब में कि तमाम स्टूडेंट्स जो शुरा हैं, स्टूडेंट्स खुसूसी तौर पर इसमें अगर कोई अपने कुछ इजहार ख्याल करने की आपको दावत दी जाती है, अगर कोई दिलचस्पी ले करते हैं तो वो 2 मिनट के लिए जो आए और अपनी बात रखें। लेडीज और जेंट्स आइए। आपका नाम? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शिफा आमिना है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज से तालिब इल्म हूँ। मैंने इंटर अपना YTC उर्दू मीडियम से मुकम्मल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप और मेरे असातिज़ा सबकी मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है और हम आज इस मुकाम पर हैं। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते हुए और अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत के लिए प्रोग्राम मुकर्रर करें। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर जनाब अलहाज सैयद इब्राहिम सलीम साहब और प्रोग्राम मेंबर मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने हमारे लिए इतनी मेहनत की। हम सबको चाहिए कि हमने यहाँ तक तालीम अपनी जारी रखी तो हमारी भी हमारी तालीम को जारी रखना चाहिए। बहुत सारी मेहनत करना चाहिए अपने माँ बाप का, अपने असातिज़ा का, जिन्होंने हमारे पीछे मेहनत की, हमें उन सबका नाम अच्छा करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारी एजुकेशन यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हुई और आगे बहुत सारे हमारे ख्वाब है, बहुत सारे आसमान में उड़ान करनी है, हमें बहुत सारी मेहनत करनी है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी मेहनत को, अपनी कामयाबी को हमेशा याद रखें, हम अपनी कामयाबी को हासिल करें, अपने माँ बाप को खुशियाँ दें, उन्हें अपने निशानात से खुश करें। हमें सिर्फ दुनियावी तालीम ही नहीं, दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। अभी सर ने कहा है कि हम लड़कियां हैं, हम पढ़ नहीं सकती। क्यों पढ़ नहीं सकती? बहुत सारे हमारे लिए भी बहुत सारे कोर्सेस है, अच्छी तालीमें हैं, तो हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारा एक ख्वाब होना चाहिए कि हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सोचेंगे कि 10th के बाद सोचिए, इंटर के बाद सोचिए, क्योंकि ये नहीं होगा। पहले से एक ख्वाब बनाना चाहिए अपना,
परेशानी आएंगी, अरे भाई ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, ये ग्रुप की हुई है, वो ग्रुप की हुई है, जो भी है पढ़ो, पढ़े तो समझ में आ रहा, पढ़ो आगे। मैं तमाम लोगों को इस बात से हिम्मत अफजाई करती हूँ कि मेरे भाइयों और बहनों को, तमाम सकते और सबको अपना एक मकसद बनाएं, अपना एक ख्वाब बनाएं, उम्मीद रखें, अपने आप पर भरोसा रखें कि हम कर सकते हैं, कि हम कर सकते हैं। हमारा जिंदगी में आगे ख्वाब क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमें ये जरूरी है, हमें आगे क्या बनना है, फ्यूचर क्या है हमारा, सब कुछ देखना चाहिए। मुझे ये छोटा सा मौका देने के लिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बेटे, बहुत खूब। देखिए, हिम्मत पैदा करना है। बहुत सारे लोग स्टेज फेयर करते हैं, हमको उन सब चीज़ों को निकालना है, सामने आना है। अब बिल्कुल जो है ना, आप हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि कैसे हालात पैदा होने जा रहे हैं, तो कुछ मुकाबले के लिए आगे आना है। आइए। Assalamu alaikum. I'm Aksha Jabin from ZKHS Sindhanagar, daughter of Syed Hamid. First of all, I would be very thankful to those people who organized this program. Respected President of the dais, all the dignitaries of the dais and all the dais, thank you so much. I would like to say that we should get such an education which will be useful in our future and which will be helpful to our society. This program is organizing to encourage us, to motivate us to achieve better ranks in our next levels. Dream big and have a vision. As Dr. Talha sir said, success is not only for us, success is also for our parents who had supported us a lot. And thank you for giving me golden awards. Any more? लड़कों में से अगर कोई है तो इस वक्त की बहुत कमी है, तो जल्दी से आ जाए, वरना सबक किया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ इस मौके से फायदा उठाते हुए एक दो बातें मैं आपके सामने रखने के लिए फिर मुतकाज़ हुआ हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ जो हमारे टीचर्स हैं, मुझे मालूम है कि सिद्दीपेट बहुत ही सरफेस इलाका है, यहाँ पर टीचर्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तमाम टीचर्स से मैं इस मौके पर गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आइटा के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें और आइटा के साथ जुड़े, और जो कुछ इसकी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ के अंदर अपना कोऑपरेशन दें, ताउन पेश करें। ठीक उसी तरह यहाँ हमारे तलबा बैठे हैं, नौजवान लड़के बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि वो ईसाइयों को जानते होंगे, उनकी एक्टिविटीज़ और सरगर्मियों से भी वाकिफ़ हैं। मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो इनसे मुंसलिक हों, जुड़े, न सिर्फ अपनी ज़िंदगी की कामयाबी को यकीनी बनाए बल्कि आखिरत की कामयाबी को यकीनी बनाए। ठीक उसी तरह हमारी यहाँ लड़कियाँ बैठी हैं बहुत सारी, मैं इनसे कहूँगा कि सिद्दीपेट के अंदर मैं समझता हूँ CIO की यूनिट भी होगी, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, तमाम लड़कियों से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि वो रब्त पैदा करें, DIO से उनसे जुड़ें, उनके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत करें। इसका मकसद ये है कि हमारी इन बेटियों को, बच्चियों को जो
मैं इस मौके पर यहाँ बैठी हुई तमाम लड़कियों से और ये से मुतालिक कोई यहाँ अगर जिम्मेदार मौजूद हों तो वही तमाम लड़कियों से रब्त पैदा करें और उनको अपने साथ जोड़ें ताकि ये जो काम है सेहतमंद किस्म के काम में इस समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं उसका फ़ायदा पूरी कौम और मुल्क को मिले।
अब जो है ना तहनीत की प्रोग्राम का कार्रवाई आगे चल रहा है। आज जो है ना हमारे मुस्लिम तलबा में सबसे आला दर्जे की कामयाब इंटरमीडिएट एमपीसी के अंदर 1000 मार्क्स में से 988 मार्क्स आयशा सिद्दीका, और जो है बीपीसी के अंदर 1000 में से 981, वो भी जो है ना मुस्लिम लड़की है। इनमें दोनों है, एक जो है ना तमन्ना और एक बच्ची जो है ना सुमैया। और एमएससी के अंदर 967, ये भी जो है ना मुस्लिम टॉपर है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सीईसी के अंदर 968, इन्हों भी जो है ना डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। और जो है ना एमएलटी, इसके अंदर भी जो है ना मुस्लिम तलबा, वो भी जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज से रहते हुए डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। इनके मार्क्स 933 है। और जो है ना बीपीसी उर्दू मीडियम के अंदर टॉपर जो है 924 है, ये भी जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज से है। और जो प्राइवेट स्कूल से 10th क्लास के अंदर 10 जीपीए ले गए, और गवर्नमेंट स्कूल्स में 9.8 जीपीए जो है ना बेस करे। उर्दू मीडियम में 9 जीपीए हाईएस्ट है, उनको तहनीत बेस कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो आयशा रफत महरी वो आए स्टेज पर। इधर जो है ना इकरा इंटरनेशनल स्कूल के हैं, और जो है एसएससी के हाँ स्टूडेंट के साथ पेरेंट भी आएंगे स्टेज पर। नेक्स्ट अब्दुल आलिया, डॉटर ऑफ मोहम्मद अब्दुल अजीज, रविंद्रा हाई स्कूल 10 जीपीए। रशीदुल्लाह हुसैन साहब को जो स्टेज पर तशरीफ फरमाई। हफ्सा अनीस, विकास हाई स्कूल 10 जीपीए, डॉटर ऑफ मोहम्मद सलाहुद्दीन। अब्दुल आलिया से
Ibra Ajmeri, Government Girls High School, 9.8 GPA. Hafsa, daughter of Sajid Baba, Government Girls High School, 9.8 GPA. देखिए जिनको में ऊपर बुलाया जा रहा है, आप उनकी हिम्मत अफजाई के लिए क्लास जरूर कीजिएगा। नेहा फातिमा, daughter of Mohammad Manzoor Ali, Government Girls High School, 9.8 GPA. Next, Afsha Jabil, daughter of Sayyid Hamid, JPHS Indranagar. Next, Tamanna Mahwish, daughter of Muhammad Asiruddin, Intermediate BPC topper 981, Pratibha Junior College. Tamanna Mahwish. Next, Samira Nas, daughter of Mandan, Pratibha Junior College, CEC district topper. Muhammad Irfan, इन जो है नए ग्रुप में इनके बहन थे आइए मोहम्मद इरफान सन ऑफ मोहम्मद इब्राहिम Maryam, daughter of Sheikh Yusuf, Inter Pratibha Junior College.
सुमैया फातिमा, सैयद रहीमुद्दीन, डॉक्टर सैयद रहीमुद्दीन, इंटर बाईपीसी, सुमैया फातिमा, आयशा सिद्दीका, डॉक्टर इब्राहिम, नाजिया, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद अकबर, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज एमएलटी, फरीहा मेहर, डॉक्टर ऑफ फसीहुद्दीन, श्री चैतन्य स्कूल टिंजीपी, मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद अब्दुल रहमान, सन ऑफ मोहम्मद गोरे मियां, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, मोहम्मद अब्दुल रहमान, सन ऑफ मोहम्मद गोरे मियां, गवर्नमेंट बॉयज जूनियर कॉलेज, इंटर, जुवेरिया नाज, डॉक्टर ऑफ अब्दुल जब्बार, इंटर गर्ल्स जूनियर कॉलेज, 979 मार्क्स, जुवेरिया नाज। तहूरा फातिमा, डॉक्टर ऑफ उस्मान अली, इंटर बाईपीसी उर्दू मीडियम टॉपर, तहूरा फातिमा, तहूरा फातिमा, आगे आइए। नेक्स्ट शिफा अहमद, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद पीर अहमद,
गौड़ जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम टॉपर शिफा अमीना नेक्स्ट अयमन फिरदौस डॉक्टर ऑफ सिराज हुसैन गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज महक बेगम डॉक्टर ऑफ मोहम्मद अफसर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हफ्सा माहिर डॉक्टर ऑफ शबीर अली 10th क्लास उर्दू मीडियम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल आयशा सिद्दीका डॉक्टर ऑफ सैयद नूरुद्दीन गवर्नमेंट नासरपुरा हाई स्कूल 10th क्लास उर्दू मीडियम टॉपर आतिफा फिरदौस नसीर साहब स्टेज पर तशरीफ फरमाइए आतिफा फिरदौस डॉक्टर ऑफ सैयद ताहिर उर्दू मीडियम नासरपुरा हाई स्कूल सुमैया मरियम नेक्स्ट डॉक्टर ऑफ मोहम्मद शमशुद्दीन नासरपुरा उर्दू मीडियम सुमैया मरियम अफशा डॉक्टर ऑफ मोहम्मद यूसुफ नासरपुरा उर्दू मीडियम हाई स्कूल आयशा तबस्सुम डॉक्टर ऑफ सैयद माजिद गौरी नासरपुरा नंबर 2 निजामुद्दीन सर और अयूब सर स्टेज पर तशरीफ फरमाइए यूसुफ सर सादत अली सर स्टेज पर तशरीफ फरमाइए नेक्स्ट मोहम्मद रिजवानुद्दीन इंटर टेब्रिज बॉयज $973 marks out of 1000 टेब्रिज बॉयज का है मोहम्मद रिजवान आयशा मुबीन
Daughter of Khaja Basir Nawaz, Tabriz Girls, 10th class 10 GPA student. Mushafia Gul, daughter of M.S. Salim, Tabriz Girls, Inter topper. Now I request to all the awardees come for group photo along with your certificate and memento. All awardees come forward for group photo. ये मरहूम हबीब मूसा की पोतरी है। फर्स्ट 10th क्लास के स्टूडेंट्स आ जाइए, स्टेज के ऊपर आइए और जो इंटर के हैं थोड़ा नीचे ठहर जाइए ग्रुप फोटो के लिए। आगे आइए 10th क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा बैठ जाइए, यहाँ से एक लाइन में बैठे। 10th क्लास के नीचे से आ जाइए। 10th क्लास के स्टूडेंट्स नीचे से आ जाइए आप। 10th क्लास के स्टूडेंट्स स्टेज पर बैठ जाइए आप। 10th क्लास के स्टूडेंट्स स्टेज पे बैठिए आप। इंटरमीडिएट के ऊपर आ जाइए। भाई आगे यहाँ पे लगा दे। हाँ वो सामने वाला था वो बोल लेना आप ये भी हटा देना। इधर आ गए इधर इधर के तुम्हारे ऐसा वाले बोलो कहने वाले हजरत एक बार चेक करिए पूरे आ रही है। फोटो उतार मैं उससे बस उतार बाबू से नहीं उतार नहीं आ रहे पूरे पूरे नहीं आ रहे।
आज के स्पॉन्सर के हवाले से मैं आप तमाम के शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये बात क्या जनाब अलहाज इब्राहिम सलीम साहब, बेटा बैठिए, बेटा 2 मिनट बाहर मत जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, 1-2 मिनट सब बैठिए। बदतमीजी हो जाती है, एक का लेके उठना शुरू कर दे तो बदतमीजी होती। बराए मेहरबानी जो है ना सब ख्याल रखिए, बराए बैठ रहिए। तो जनाब अलहाज इब्राहिम सलीम साहब जो आज के स्पॉन्सर हैं, उन्होंने अभी जो है इस बात का जो है ना तयक़ुन दिया है कि आने वाले साल में 10 रिजर्विंग स्टूडेंट्स को वो जो है ना एसएससी की फीस जो है ना भरने का तयक़ुन दिया है। लिहाजा आप तमाम से जो है ना तालियों की गूंज में जो है ना उसके अलावा जनाब अलहाज इब्राहिम सलीम साहब ने ये इस बात का भी तयक़ुन दिया कि आने वाले दिनों में इससे अच्छे और बड़े-बड़े जो प्रोग्राम और जो बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह वो जरूर करेंगे। अब मेहमानों की गुलगोशी का वक्त है, लिहाजा मैं जनाब अब जो है ना हमारे मेहमान अजीजों का गुलपोशी का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम का इख्तिताम का लास्ट हिस्सा है, तो कुछ ही देर में जो है ना प्रोग्राम खत्म हो चुकने वाला है। पहले चीफ गेस्ट की गुलपोशी हमारे आइटा सिंडिकेट के सदर जनाब सलीम सर के जानिब से होगी।
मिनट इधर देखिए। जनाब ज़ैनुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आप तशरीफ लाएं और आपकी गुलपोशी आपकी गुलपोशी जनाब यूसुफ साहब करें। जी एक मिनट देख रहा हूँ। आप आमी अरे वाह, हाँ आप इधर देखो। एक मिनट जुबैर हुसैन साहब से दरख्वास्त की जा रही है वो नहीं सर आपकी कोई हैसियत या है सर इसके लिए मैं जरा सादत अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि जुबैर हुसैन साहब को जाना चाहिए। आईआरडी के ट्रेजरर जनाब आरिफुद्दीन साहब से गुजारिश की जाती है कि वो तहरीर के लिए सामने आए और इनकी तहरीर पूरे आईआरडी की तरफ से जो है की जा रही है, जिनके अंतिम क्वेश्चन को जिसने याद किया प्रोग्राम कामयाब हुआ। इंशाअल्लाह आगे भी जो है मजीद भी आपका काम हम सबको देता रहे। एक मिनट शकील सर एक मिनट। अरे हाँ इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल होने का जो स्टार्ट किए हैं अपने आरिफ साहब, क्योंकि आइडा के ट्रेजरर हैं, पहले स्टार्टिंग में साथ फोन किए थे इस तरह का प्रोग्राम करेंगे साथ तो मुझे फोन किए। देखिए यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला जिससे काम लेना है, जिससे शुरुआत करना है, उनके जहन में लाता है। तो आरिफ साहब ने नहीं किए, से फोन किया, फिर उसके बाद में मैंने सोचा स्पॉन्सर भी होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में अलहाज जनाब सैयद सलीम साहब के पर्सन से मैं रब्त पैदा किया और सलीम साहब से भी रब्त पैदा किया, तो उन्होंने दबाई किया कि इंशाअल्लाह ज़रूर हम स्पॉन्सर करेंगे। तो लिहाजा प्रोग्राम का जो सक्सेस होने का जो श्रेय जाता है अपने आलिम साहब को जाता है। जनाब आरिफुद्दीन साहब से गुजारिश की जाती है कि वो बड़ा टैक्स
special thanks to the organizing committee and all the volunteers who have worked tirelessly behind the scenes to make this event a success. Your meticulous planning and dedication have ensured a smooth and memorable ceremony. We are also deeply grateful to the families and friends of our students. Your unwavering support and encouragement are the bedrock of their achievements, and we share this moment of pride and celebration with you. To our sponsor and partners, thank you for your generous contributions. Your support enables us to recognize and reward the outstanding achievements of our students in such a grand manner. Lastly, a big thanks due to everyone who attended today. Your presence here signifies the importance of our students' accomplishment and adds to the joy of this celebration. As we conclude, let us carry forward the spirit of excellence and inspiration that today has bestowed upon us. Have a wonderful evening and safe travels home. Thank you for everyone. शिरकत फरमाने के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइडा